مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ جو نماز ترک کرتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل جہنم ہوگا۔ تو سب اسلامی بھائی نماز کسی حال میں نہ چھوڑا کریں۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو۔ 7 رمضان المبارک شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے کیا کیا برکتیں لٹائی، آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ 1432 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک آج 7ویں شب ہے۔ تراویح سے فراغت کے بعد عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ 30 روزہ سلسلہ اعتکاف ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ صلو علی الحبیب۔ ہاں بھائی ذرا ناظرین کو بتاؤ کوئی اور شعر بھی وہ ابھی اسکرین پر آ گیا ہے، تازہ ترین چمکدار امام پہن کر۔ باپا سکھر آ گیا ہے بھائی میدان میں، خوب امام آج انہوں نے سجائے، کیونکہ روز وہ الحمدللہ دوسرے شہر والے آ رہے ہیں نا تو باری باری تو امام ماشاءاللہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ امام آج پہلی بار بھی جن کے سجے ہیں نا تو وہ ان کی داڑھی بھی نکال دیں، یہ دعا کرو داڑھی کے ساتھ یہ امام ہر وقت ان کے سجے رہے۔ سبحان اللہ، آج اماموں کی تعداد تاریخی ہے، سب سے زیادہ ہے سکھر میں ماشاءاللہ۔ میں ہوں سب کا باپا باپا تو مجھ سے بڑی عمر کے لوگ بھی بولتے ہیں، شاید مانا بھی نہیں پتا ہوگا سب کو، تو مجھے تو وہ لفظ مرشد تو میں بہت کہ مخالفت کرتے کرتے اب تو بولنا چھوڑ دیا میں نے کہ مجھے پیر خانہ مت بناؤ، مجھے ساری دنیا میں کام کرنا ہے، مجھے نقش بندی بھی چاہیے، چشتی بھی چاہیے، سور وردی بھی چاہیے، قادری بھی چاہیے۔ میں نے ٹھیکہ نہیں لیا کہ جو میرا ہی مرید ہوگا اسی کی دعوت اسلامی سب کی ہے، سارے سنی ہوگی الحمدللہ۔ میں شروع میں بہت چلاتا تھا لیکن میری آواز دب گئی، اب میں بولنا چھوڑ دیا، مانتا ہی نہیں کوئی، کرتے رہتے، تو یہ آپ کے تنظیمی نقصان ہوگا اس سے۔ اگر اس کو آستانے کا اب وہ روپ دو گے نا تو کئی پیروں کے مریدین کٹ جاتے ہوں گے، یہ آپ کا نقصان ہے، آپ کی دعوت اسلامی کا نقصان ہے کہ ہماری منزل پیری مریدی نہیں، پیری مریدی ہمارا سائیڈ بزنس ہے، اصل کاروبار ہمارا سنتوں کا ہے، تو سنتوں کی دکان چمکنی چاہیے، کوئی کسی کا مرید ہو نہ ہو، آ جاؤ سب آ جاؤ، دعوت اسلامی میں سب کی دعوت اسلامی ہے۔ سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ باپا یہ ایک نیت اسلامی بھائی نے میسج کے ذریعے بھیجی ہے کہ میرے سارے بچوں نے نیت کی ہے کہ اب موبائل فون استعمال نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی النبی۔
باپا سردارآباد کے معتکفین میں سے 37 اسلامی بھائیوں کی نیت آ چکی ہے. اللہ، تو یہ 37 جو ہیں سردار آباد والے، ان کو میری طرف سے وہ کارڈ کون تحفے میں بانٹے گا؟ اب میں تو وہاں بانٹنے سے رہا. باپا وہاں نگران پاک کابینہ ہے. ان کو بول دو کہ میں بول ہی رہا ہوں، سن ہی رہے ہوں گے انشاءاللہ. وہ تو میری نیت سے، میری دلجوئی کے لیے ان سب کو کارڈ تقسیم کر دیں جو جان چھڑا رہے ہیں ان سے. اور وہ مدنی منوں کے جو ابو ہیں جنہوں نے SMS کیا ہو، وہ بھی میری نیت سے ان کو کارڈ دلا دیں. سب غیبت کے خلاف بس وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے ڈٹ جاؤ. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے. محبتوں کے چور، شیطان کے خلاف جنگ، سود کے خلاف جنگ، رشوت کے خلاف جنگ، علم و ڈراموں کے خلاف جنگ جاری رہے، انگریزی فیشن کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. باپا اوکاڑا کے 25 معتکفین کی بھی اطلاع آ چکی ہے. سبحان اللہ. بہاول نگر کے 8 اسلامی بھائیوں کی نے بھی موبائل ترک کرنے کی نیت کا اظہار کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا. ان سب کو وہاں کے ذمہ داران میری طرف سے آپ کارڈ تقسیم کر دیں. جب اللہ آپ کو موقع دے تو بے شک آپ کو اجازت ہے آپ مانگ کر مجھ سے اس کی رقم حاصل کر لیں. سبحان اللہ. آپ مانگیں گے تو دوں گا، بغیر مانگے تو میرے کو سب یاد بھی نہیں رہے گا. آپ انشاءاللہ مانگیں گے تو اس کی جو بھی رقم بنی ہوگی یہ میرے ذمے ہے. مگر یہ وہ قرض نہیں ہے کہ میں مر جاؤں اور آخرت میں پھنس جاؤں، ٹھیک ہے نا. یہ محبت والا قرض ہے کہ آپ مانگو گے تو دے دوں گا. حرج نہیں ہے نا مولانا. تاکہ یہ مطلب ہے نا کہ وہ اصلی معنوں میں میری طرف سے ہو جائے کہ اس کے پیسے میرے ذمے. بھر دوں گا. دو چار کتنے بانٹ کے 1000-1500 کے بانٹیں گے انشاءاللہ. اتنے تو میں بھر سکوں گا، مشکل نہیں ہے. باپا جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ آ گئے اور یاد دلا دیا، ان کے لیے بھی. ہاں، سب کے لیے جزاک اللہ خیرہ. خوب غیبت کارڈ بانٹو، سب کو لگاؤ انشاءاللہ. رمضان میں یہ جنگ تھوڑی آسان ہو جاتی ہے. شیطان قید میں نا آسان ہوتی ہے. جو غیبت نے ہمارے خاندان اجاڑ کر رکھ دی ہیں، اس کو نہیں چھوڑیں گے ہم، جو گھر تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. جاری رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. لگا رہے گا. عز و جل جھکی رہے گی. جاری رہے گی. زیادہ کھانے کے خلاف بہت زیادہ تو ایسا کھاتے ہیں کہ یار اب یہ شکر والے تو خدا جانے کیا کرتے ہوں گے. پوری دنیا میں جو ہے نا فوڈ کلچر اور کھانے کی ہرس جو ہے نا اس وقت وہ اس پر عموم میں بلوا ہو گیا ایک طرح سے. عام کیا خواص کیا عوام، کیا چھوٹا کیا بڑا، سب بھی تقریباً، یہ مبالغے کے ساتھ سبھی کہہ رہا ہوں، سب نہیں تو اکثریت اس میں مبتلا ہے. کھانے کی بے احتیاطی میں ان کو نہیں کھانا ہی نہیں آتا، نہ پانی پینا آتا اپنے کو، نہ بولنا آتا ہے، کچھ نہیں آتا. بس ایسے ہی بس چل رہی ہے گاڑی، حقیقت میں کچھ نہیں آتا اپنے کو. تو ہمت کیجیے. اب آپ نے تو آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، تو خیر خواہ آپ کا، آپ کی صحت اچھی ہوگی تو مجھے مدنی قافلوں میں سفر کروانا آپ کے لیے آسان ہوگا نا. ورنہ پھر آپ سستیاں کرو گے، زیادہ کھانے سے سستیاں بڑھتی ہیں. تو یہ ہمارے سکھر کے اسلامی بھائی بھی نظر آ رہے ہیں، بیچارے بول کچھ نہیں رہے، کیا بول رہے ہیں تو ان کی آواز نہیں آ رہی. تو چلو میں نیتوں کا اظہار کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بھی اظہار کر سکتے ہیں، اور یہاں پر مائک کے ذریعے ذمہ داران بھی حاضری دے سکتے ہیں آپ کی بارگاہ میں. تو یہ بھی چبا کے کھائیں گے. پاپا ہاتھ تو ہلا رہے ہیں، جھنڈے بھی ہل رہے ہیں. ہاں تو یہ تو یوں سمجھتے ہیں چبا کے تو کھاتے ہی ہیں. پانی نہیں چباتے ہم، پانی نگلتے ہیں، انڈیلتے ہیں. تو پانی انڈیلنا بھی اس میں بھی ترکیب ہے کہ پانی چوس کر پیے. تو اس طرح بھی وہ ہاضم لعاب جو ہے اس میں مکس ہو کر پیٹ میں جائے گا، مفید ہوگا اندر ہضمے کے لیے.
और घटाघट बड़े बड़े घूंट पिएंगे तो जिगर मीनिंग वो कलेजी लीवर को तकलीफ नुकसान पहुंचता है बड़े बड़े घूंट पीने से पानी के। अब बड़ा और छोटे के भी सोचना नहीं पड़ता होगा कि बड़ा कैसा और छोटा कैसा, पानी पीते हैं बस। तो चूसेंगे तो ऑटोमेटिक वो छोटा हो जाएगा। तो चूस कर मुंह में जमा नहीं करना, वो निगलते रहना, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। खाली मुंडी हिला देने से वो आ नहीं जाएगा, आपको मशक करनी पड़ेगी चूस कर पीना। वैसे जिसको नहीं आती वो उसको पहली बार नहीं आएगी। चूस कर भी पिए और कोशिश करे कि आवाज भी ना बने। ये आवाजें भी सुन्नत नहीं है चूस कर पीने में। चूस कर पीना भी सुन्नत और बिला आवाज पीना भी सुन्नत। तो प्रैक्टिस करते। गिलास में तो मुझसे तो नहीं चूसा जाता पानी। ये मिट्टी के प्याले में कदरे आसान होता है। मिट्टी का प्याला भी इस शेप का, इसमें मैंने महसूस किया कि चूसना आसान होता है। मगर ये अब घरों में कहाँ यार, एक आध मेरे जैसों के लिए रखते होंगे कि मैं जाऊं मेहमान इनके घर पे तो रख देते हैं पुराने सुराने प्याले और एक आध मिट्टी का थाल, और कभी जाना होता ना तो ये तरकीब होती है। बाकी मिट्टी के बर्तन का भी सिलसिला हालांकि मदनी इनाम है अपना। और जो घरों में अपने मिट्टी के बर्तन घर के लिए बनवाता है, फरिश्ते उसके उस घर की जियारत को आते हैं। मैं मिट्टी के बर्तन में खाना लफ्ज सुन्नत कहने से डरता हूं मेरे मुंह से, क्योंकि मैं अभी तक कोई एक रिवायत जरूर मैंने तलाश की, उसमें वो शमाइल रसूल में इसमें ये लिखा है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक प्याला मिट्टी का भी था। अब वो ये वजाहत नहीं है प्याला पानी पीने के लिए था या खाना खाने के लिए। अफजल लफ्ज सुन्नत की ताबीर, इन्हें सुन्नत रसूल कहने के लिए दलील चाहिए। और एक आध बार कोई अमल करें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको भी सुन्नत नहीं कहा जाएगा। ये भी आला हज़रत का इरशाद है। तो इसलिए आप भी जब तक अपने भी कोई यानी कि फैसला हो नहीं पा रहा, आपके पास भी कोई दलील नहीं है। अफजल लफ्ज सुन्नत नहीं लिखा। हाँ, किस में लिखा? पहली जिल्द अफजल, ठीक है ना। मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी पता चलेगा कि लफ्ज सुन्नत से कहीं ताबीर है या सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसको बार बार इस्तेमाल करते रहे हैं। कोई यानी सुन्नत की तारीफ इस पर सादिक आती है यानी मिट्टी के बर्तनों पर, ये मुझे मालूम कंफर्म मालूम नहीं। आला हज़रत ने अफजल लिखा है तो ये ज्यादा मतलब ज़ाहिर है कि वो एक सराहत हो गई ना, मगर सुन्नत नहीं है ये नहीं लिखा आला हज़रत ने। तो इसलिए अगर किसी बुजुर्ग ने इसको सुन्नत लिखा है तो गुंजाइश तो है कि वो अगर इसे दलाइल देते हैं कि सरकार के बर्तन थे मिट्टी के और उसमें आप अक्सर खाते पीते रहते थे। तो मिट्टी के बर्तन जो बनवाता है तो वो रद्दुल मुख्तार के हवाले से, गालिबन बाहर शरीयत में ही है ना, रद्दुल मुख्तार के हवाले से, शामी के हवाले से, कि जो अपने घर के लिए मिट्टी के बर्तन बनवाता है फरिश्ते उसकी जियारत को आते हैं। और शायद अहकाम शरीयत में भी है, आला हज़रत के उसमें भी अहकाम शरीयत मेरे याद पड़ता है उसमें भी शायद है ये। तो सक्कर से अभी तक कोई SMS नहीं आया है, ये भी एक नई बात है कि सक्कर वाले इतने, इनका जिक्र खैर हमने किया, इनके इमामों की तारीफ की मैंने कि इतने सारे इमाम वाले कि ये फर्स्ट आ गए। अब तक जितने भी ओबी वैन जा रही है बाबुल इस्लाम में सबसे ज्यादा इमाम इनके पास है। ये साफ मतलब है कि वो सक्कर और पत्थर दोनों का मुकफ्फा लफ्ज है, पत्थर ही बोलते ही नहीं कुछ यार कि हम भी SMS को फारिग करेंगे, खाली हंसना ही जानते हैं। अब आप लोग भी आने दो यार, कोई पैगाम जल्दी जल्दी। बापा गोजरा वालों का तो आ गया कि सारे मोतकिफीन ने नियत कर ली है। सुभान अल्लाह। ओ सारे पंजाबियां दी खैर होवे। सिंधी मानो तमा भी पुठिया बापा रुकनी शुरा मौजूद है वहाँ पर। आपने बैठे बैठे ऐलान कर दिया शक्कर वालों ने नियत कर ली है, तो उठते उछलते हाथ ले रहते तो हमको भी समझ आती। कोई दिल के हालात तो हम तो नहीं पढ़ सकते ना कि कर दिया। तो किन के, अच्छा इन सब ने क्या आइंदा वो छुट्टी मोबाइल की बिला जरूरत इनको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है।
इंशाअल्लाह। और अगर जिनको जरूरत नहीं उन्होंने मोबाइल फोन रखना ही नहीं है, और जो पावरफुल है अपने औलाद से मोबाइल उनको नहीं दिलाना है, और फुसला के किसी तरह भी शरई तरीके से वो मोबाइल उनके ले लेना है। नाबालिग है तो उसकी कीमत उसको दे देनी है या उसकी कीमत उस पर खर्च कर देनी है, वैसे नहीं छीनना है। बापा गुजरात के 80 मोतकिफीन ने नियत कर ली है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह यार, फिर तो बहुत, ये कार्ड सब बांटेंगे तो मैं क्या करूंगा, इतनी रकम कहाँ से लाऊंगा। चलो इंशाअल्लाह कर लूंगा, मैं रकम दे दूंगा, आप बांटो इनको सबको, गीबत कार्ड लगाओ इसको, 6 रुपये का एक कार्ड है, जिसने नियत की है इंशाअल्लाह मेरे साथ पैसे मांग के ले लेना। बापा एक मदीना मैसेज आया है, सरदाराबाद की एक मजलिस है, उसके 19 इस्लामी भाइयों ने अपने मोबाइल फरोख्त कर कर मदनी अतियात में रकम जमा कराने की नियत की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये तो माशाअल्लाह नई बात है यार, वाह। माशाअल्लाह। बापा जामियातुल मदीना बहावल नगर के तलबा ने मोबाइल बंद करने की नियत की, इस्तिकामत की दुआ के तालिब है। माशाअल्लाह, अल्लाह इस्तिकामत से, माशाअल्लाह, वाह क्या बात है मदीने की। ये बेचने वालों ने अच्छी पहल की यार, वाह। बारिश का पहला कतरा बन गया देखो, और ये सक्खर वाले, सक्खर में मेमन कौम बहुत है हमारे यहाँ, पैसा होता है इनके पास, काम कम करते हैं, पैसे दे सकते हैं ये लोग। तो अगर ये भी मोबाइल बेचकर हमारे मेमन भाई मेरा नाम ऊंचा करे, मैं भी मेमन भाई हूँ ना, इनका ही भाई हूँ, मैं तो सबका बापा हूँ वैसे, मगर वो बिरादरी के लिहाज से मेमन भाई, पैसे आते हो तो चलो भाई बना लेते हैं इनको, दावत इस्लामी में पैसे दे दो यार। चलो भाई, मैं यहाँ इनको बोल रहा था, आवाज यहाँ टकरा गई, बाबुल मदीना में किस्सा भाई को, वो कहता बेच के दावत इस्लामी को पैसे दे दूंगा। सुभान अल्लाह, अभी बहुत सारे शुरू हो जाएंगे ये बेचकर पैसे देने वाले। बाबुल मदीना से कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा, बेचकर पैसे दावत इस्लामी को। मोबाइल, अभी मोबाइल फोन की बात हो रही है, अभी एक आइटम बिक जाए तो फिर ये दूसरा, ये शक्कर बराह रास्त आ रहा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो ये कितने बेचेंगे मोबाइल, इसमें से बेचकर दावत इस्लामी को पैसे दे देंगे? एक भी नहीं है। मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में, पैसे की बात मत करो, बाकी हमारी जान हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम बाबा जान सखरजा बदे इस्लाम भाई सखरजा नियत करंदा कि इंशाअल्लाह फजूल मोबाइल इस्तेमाल नहीं करो इंशाअल्लाह। बदे गिनती ते कुर्बान के बीठे बीठे बदे के सखरजा मोतकिफ भी नियत करंदा इंशाअल्लाह इतिकाफ में मोबाइल इस्तेमाल नहीं करो इंशाअल्लाह। अच्छा थोड़ा रिड्यूस करी जाएंगे दावे के। इस्तकामत जी दुआ के रेडियो बदल है न, तो इतिकाफ में तो बिल्कुल करावा ही ना तो इनके अलावा भी इतिकाफ के बाद भी इंशाअल्लाह फजूल इस्तेमाल नहीं करूँ बाबा इंशाअल्लाह। इन्हें मतलब जान नहीं छोड़ाई नहीं रखणू है इनके कारोबार के टाइम इंशाअल्लाह इस्तेमाल करना इंशाअल्लाह फजूल नहीं करना। जेका इस्लाम भाई न जिनन के हाजत कौन है ना, हुआ इस्लामी भाई जेका हु मोबाइल से जान छड़ाएगी छड़ाए वठन तमाम इस्लामी भाई नियत कयो इंशाअल्लाह फजूल मोबाइल इस्तेमाल न कंदा इंशाअल्लाह। ये हुए पोते जी रहता है खुद मोबाइल वालों लगे तो साईं ना यार तमाम भले मोबाइल रखो जरूरत है तो इन्हनि जी आदत तो खराब ना करो कि फजूल ना करो, इनके पोइ फजूल सम्झाणो खपनो कि कहिड़ो फजूल जंहिंखे हाजत ना आहे न कारोबार कंदा आहिनि न मतलब हाजत खाली वो हेॾो लॻा हूंदा आहिनि गेम कुॾंदा आहिनि इन में उन्हनि खे तव्हां मतलब इन तरकीब मुंहिंजी ॿुधायो कि मोबाइल छुट्टी इनके मतलब बाबा मदनी कम जे लाइ इस्तेमाल करना है इंशाअल्लाह सर। माण्हू सही ने यार इस्तकामत जी दुआ करे ॿुधाए। इस्तिकामत छा जी तव्हां मतलब मोबाइल तर्क करो तो इस्तिकामत जी दुआ वठो। मोबाइल फजूल मोबाइल ना रखनि जी। गिबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, गिबत करेंगे ना सुनेंगे।
इंशाअल्लाह फजूल मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सर पर अमामा, चेहरे पर दाढ़ी, इंशाअल्लाह पर जुल्फे, हया से नजरें, इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। घर वाले के ऑफर हो गए क्या? हाँ है माशा। तो शक्कर वाले भी अगर कुछ पूछें फरमाएं, अपनी कोई अच्छी अच्छी मदनी नीयतें, हमारे यहाँ बाबुल मदीना में, हमारे बोलता हूँ, मुझे शक्कर भी हमारा ही है, न कि बाबुल मदीना के मोतकिफिन कमोबेश 1500 के देखे लगभग ये फिगर है हमारा यहाँ इस वक्त मोतकिफिन का, बाबुल मदीना के आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में। तो इसके सही फिगर तो नहीं पता चला, लेकिन वो एक तादाद है कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी सजाने की, न जो शेव्ड है उनकी, कल मैंने दावत भी की थी, जिन्होंने दाढ़ी रखने की नियत की थी ना, तो कल मेरे साथ जिन्होंने माशाअल्लाह शायरी की भी, मतलब यानी कि वो तरकीब बनी थी हमारी। तो इस तरह ये कि अक्सर यानी कि दाढ़ी की नियत की है, जिन्होंने छोटी रखी है अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ाने की नियत की है, और इमामों की नियतें, जुल्फों की नियतें, चांद रात से एक तादाद है जिन्होंने मदनी काफिले में सफर की नियत की। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो अभी हाथ उठवा कर मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ भाई, शक्कर वालों को दिखा दो कितने साहब भाई है जिन्होंने दाढ़ी की, इन्हें जो दाढ़ी रखी हुई है वो नहीं, जिन्होंने दाढ़ी नहीं रखी वो नहीं, हाथ उठाकर दिखा अगर मौजूद हैं तो। माशाअल्लाह, बैठ ताकि दूसरे भी नजर आए, सबके हाथ नजर आए माशाअल्लाह। तो कितने हाथ उठे हुए जिन्होंने दाढ़ी की नियत की, और अभी बहुत यानी कम हो गए, कल ज्यादा थे, इस वक्त शायद वो हो सकता है कि चले गए हों, सो गए हों माशाअल्लाह। हाँ जी, काफी हैं। एक मुट्ठी दाढ़ी अगर काटी थी तो माज़अल्लाह, तो वो एक मुट्ठी की नियत करते, वो भी हाथ उठाए माशाअल्लाह। तो कितने साहिब भाई है जो अभी मौजूद हैं यहाँ, दाढ़ी की नियत की हुई है। अच्छा, इसी तरह वो चांद रात को मदनी काफिले में सफर की किस किस की नियत है, हाथ उठाएं। देखो बाबुल मदीना वालों की माशाअल्लाह जमा मर्दी, देखो चांद रात को हाथों हाथ मदनी काफिले के लिए इतने सारे सहमत। तो सखर वालों का साथ तो चला है ना बाबा, हो सकता है वहां भी सारे हाथ उठाते हैं। नहीं, सखर वाले ऐसा कस के पत्थर मारो शैतान को कि याद करे। सखर वालों जिन्होंने दाढ़ी की नियत बाबा पहले, और सिन्नी मानू बुधायो घना मानू इन तमाम वट दाढ़ी रखने वाला। एक मिनट अब्दुल करीम, आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है। हाँ, अब्दुल करीम भाई की आवाज ऑनर करें। मदीना बापा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, सखर के मोतकिब इस्लामी भाइयों ने भी कसरत से इमामे सजा लिए हैं, और चांद रात से भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तमाम मोतकिफीन मदनी काफिले में सफर इख्तियार करेंगे। तादाद इन्हें ऐसों की तादाद बताओ जिन्होंने इमामे सजाए हैं, तो ये सजाए रहेंगे। अब आज स्पेशली वो थान के थान तरकीब बनाकर इन्होंने बांध लिया, तो किसी ने इनको बांध दिया। अच्छी बात है, अच्छे लगते हैं ये कि ये जीनत एक मदनी चैनल की हमारे हो गई, लेकिन ये कि वो सारे के नियत क्या मुस्तकिल सजाएंगे, इसी को नियत दो ना यार। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बापा, चांद रात को सखर के मोतकिफीन इस्लामी भाइयों में 7 इस्लामी भाई 12 माह के लिए तैयार हैं माशाअल्लाह। अब्दाराबाद से भी 12 माह के लिए 11 इस्लामी भाई तैयार हैं माशाअल्लाह। ये बात हुई, ऐसी खुशखबरियां सुनाओ यार। अल्हम्दुलिल्लाह गम्बट के 30 दिन के मोतकिफीन में से भी एक मदनी काफिला 12 माह के लिए तैयार है माशाअल्लाह। मजीद इस्लामी भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 30 दिन के अंदर अंदर मजीद अच्छी अच्छी नियतें आपकी बारगाह में पेश करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, वो दाढ़ी का एक मुट्ठी दाढ़ी रखाना, फिर ये कि चूंकि दाढ़ी मुंडाना हराम और एक मुट्ठी से घटाना हराम, तो इसके लिए तौबा भी वाजिब है। तौबा भी करें और एक मुट्ठी दाढ़ी सजाएं, छोटी है तो उसको बढ़ाएं, एक मुट्ठी तक थोड़ी के नीचे से नापनी, यहाँ से ये हड्डी पकड़ेंगे ना तो ये थोड़ी है इस तरह। तो ये
दाढ़ी एक मुट्ठी से बाहर निकल जाए तो ये अब काट सकते हैं, यहां से भी एक मुट्ठी। अब ये कि दाढ़ी कितने इस्लामी भाइयों ने नियत की है। अज़्ज़वजल इसी तरह गंबड़ शहर के अंदर भी 30 दिन का इत्काफ अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और अली भाई अल्हम्दुलिल्लाह गंबड़ भी तशरीफ ले गए थे और गंबड़ के तकरीबन डबल 12 इस्लामी भाइयों ने दाढ़ी सजाने की नियत की है। कंबर गम्बट और इसी गंबड़ गम्बट गंबड़ के तकरीबन बापा कंबर डबल 12 इस्लामी भाइयों ने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल दाढ़ी सजाने की नियत की है। माशाअल्लाह। गंबड़ के अंदर भी बापा अल्हम्दुलिल्लाह 30 दिन का इत्काफ जारी है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल। माशाअल्लाह। और इसी तरह बापा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल घोटकी के अंदर भी 30 दिन का इत्काफ जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई वहां तशरीफ ले गए और घोटकी के भी कई इस्लामी भाइयों ने दाढ़ी सजाने की नियत की है। माशाअल्लाह। सक्कर का नहीं पूछू ना आपको, जो और पूछा इसी वापस तरह ले लूं। बापा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल गंबड़ के कमो पेश 40 इस्लामी भाइयों ने इमाम शरीफ का ताज सजा लिया है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बापा इसी तरह घोटकी के भी कई इस्लामी भाइयों ने इमाम शरीफ का ताज सजा लिया। माशाअल्लाह। और चांद रात के मदनी काफिलों की तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल आपकी नजर करम से ऐसी बहारें हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह टंडो आदम क्या, मीरपुर क्या, नवाबशाह क्या, मोरो क्या, अल्हम्दुलिल्लाह सक्खर, गंबाट और अत्ताराबाद, इसी तरह घोटकी के कई इस्लामी भाइयों ने नियत कर ली कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम चांद रात को 12 माह के लिए, 30 दिन के लिए, 12 दिन के लिए और 3 दिन के लिए मदनी काफिलों में सफर करेंगे। बाबा शकील भाई की आंखों का कुफले मदीना माशाल्लाह बाबा देख रहे हैं बाबा। अल्लाह करे यार, बिल्कुल मुझे भी लग जाए। हमारी तहरीक के साथ साथ चल रहे हैं बाबा। माशाअल्लाह। शकील दीवाना। हाँ। अक्सर नजरें झुकी रहेंगी, अक्सर नजरें झुकी रहेंगी, हया से नजरें इंशाअल्लाह बयान के अलावा भी नजरें झुकी रहेंगी, गुफ्तगू में नजरें झुकी रहेंगी, रोड पर चलते हुए नजरें झुकी रहेंगी, गाड़ी में सफर करते हुए नजरें झुकी रहेंगी, घर में बैठे हुए नजरें झुकी रहेंगी। सुभान अल्लाह। झुकी रहेंगी। काश तो सखर वाले गीबत के खिलाफ नारा लगा दे इंशाअल्लाह। है कोई लगाने वाला? गीबत के खिलाफ जंग, हम गीबत करेंगे ना सुनेंगे इंशाअल्लाह। गीबतों के चोर कुफले मदीना इंशाअल्लाह, रुख पर दाढ़ी इंशाअल्लाह, सर पर इमामा इंशाअल्लाह, हया से नजरें अक्सर नजरें इंशाअल्लाह, शैतान के खिलाफ जंग इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। माशाअल्लाह। सरदाराबाद से बाबा जबरदस्त पैगामात आ रहे हैं, SMS आ रहे हैं, इतने इस्लामी भाई ने इमाम शरीफ और दाढ़ी की नियतें की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी काफिलों की भी माशाल्लाह वहाँ से ठीक ठाक नियतें आ रही हैं। साढ़े पंजाबी पाई है ने, ये शक्कर वालों ने इमामा गोली कर दिया, जवाब ही नहीं दिया मेरे ये को। सरदाराबाद हमारे हाजी शाहिद। माशाअल्लाह, क्या बात है माशाअल्लाह। अभी देखो बाहर हैं, भले अभी इस वो ये नहीं पहनते, टेम्परेरी इनको बांध दिया, लेकिन इनको ये टेम्परेरी रहे नहीं, कब्र में जाए ये दर्श देना अपने को इत्तिकाफ में, मतलब ये काफी फायदा हो जाता है कि इनको इमामे का बार बार अर्ज करते रहेंगे ना, आप बोलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये कि मुस्तकिल भी आ जाएगा। चलो आर्जी तौर पे जिन्होंने बांधा वही मरहबा, कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह यूं ही सीखेंगे, आदत पड़ेगी। तो शक्कर में भी माशाअल्लाह ये काफी भाइयों ने बांधा है, जो वो करीना बताता है कि वो आर्जी तौर पे बांधा है बल्कि बंधवाया है, वो कोई बात नहीं, लेकिन अब इसको मुस्तकिल करो यार, क्योंकि बेचारे इतने सारे हैं तो फिगर देते हुए डरते होंगे कि इमाम वाले हैं नहीं तो फिगर देंगे कहां से। अब ये कि इंशाअल्लाह आप इनको मजबूत करके फिर मेरे को फिगर भेज देना बाद में कि भाई इतने 100 या इतने 1000 तैयार हो चुके हैं कि हम मुस्तकिल इमामा बांधेंगे इंशाअल्लाह। बड़ा शेर है ये, अपने बाबुल इस्लाम का ने पहले नंबर पर हैदराबाद है ना, सबसे बड़ा शेर ये बाबुल इस्लाम का, और ये बाबुल मदीना के बाद, और फिर मीरपुर खास है और फिर सक्कर है। मीरपुर खास से यहाँ सक्कर बड़ा है। हाँ
हैदराबाद के बाद सक्खर है, तो इंशाअल्लाह यहाँ इमामों की बहारें कभी न कभी आई जाएंगी, मुस्तकिल बहारें इंशाअल्लाह। उनका दीवाना इमामा और जुल्फोरी। शकील भाई आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है, एक मिनट। जी शकील भाई फरमाए, क्या फरमा रहे हैं? दुआ फरमाए, अल्लाह ताला इस्तिकामत अता फरमाए। बाबा नजर करम फरमाते रहा करें, अल्लाह हमें इमामत सजाने की तौफीक अता फरमाए। आप फरमाते मदनी हुलिये से मुझे प्यारे, अल्लाह हमें मदनी हुलिया अपनाने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो सब चांद रात को मदनी काफिले में सफर की भी सक्खर वाले भी नियत करें, हाँ इंशाअल्लाह हिम्मत करें। करवा लो, हाथ उठाकर कुछ अपने। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सक्खर माशाअल्लाह बहुत दीवानगी है, मैं कई बार वहाँ हाजिर हुआ हूँ, माशाअल्लाह बहुत दीवानगी। है हकीकत बोलता हूँ, वो पुराने चेहरे सारे झूमते बाबा, इनको आप दीवानगी कह रहे, झूम तो नहीं रहे हैं। वही ना, सारे पुराने जो थे वो मदफून हो गए या पता नहीं, नजर ही नहीं आते यार, पुराना कोई भी नजर नहीं आ रहा अब्दुल करीम के अलावा। बाकी शकील और ये हाजी मोहम्मद अली सारा वहाँ थोड़ी रहते हैं। बहुत माशाअल्लाह दीवानगी मैंने देखी है, कहाँ गए पता नहीं। अल्लाह, अब आ जाओगे कहीं, इधर तो छुपे हुए होंगे। नहीं होंगे बाबा, यही हाँ, अगर रिसा गए तो आ जाओ। अल्लाह 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 अल्लाह। ये चाहे बाबा कई जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। अल्लाह, हाँ, ये हो सकता है कि मौजूदा जिम्मेदारान होंगे, जिन दिनों मैं जाता था ना वहाँ, उन दिनों मैंने वहाँ दीवानगी देखी है माशाअल्लाह। यानी ऐसे दीवाने हैं कि यानी जरूरत से ज्यादा। जब इनके यहाँ मुनव्वर मस्जिद का वो होता था मरकज, मदनी मरकज अपना हफ्तावार इज्तिमा, तो वहाँ अतराफ के शहर गांव गोट के भी आए थे साईं भाई, तो 5 साल के बाद शायद मैं गया था वहाँ, या कई सालों के बाद मदनी मशवरा था वहाँ, और ये पता नहीं मदनी मशवरे की शायद इस्तिलाह भी नहीं थी अपनी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब। मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अतार का, उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का। मूछें पस्त करो, दाढ़ियों को मुआफी दो, यानी बढ़ने दो, और यहूदियों की मुखालफत करो, यानी उन जैसी, लेकिन उनकी तरह चेहरे न बनाओ, बल्कि दाढ़ी बढ़ाओ। यहूदियों किसी सूरत मत बनाओ, उन जैसी शक्ल मत बनाओ।